Yes, very good morning, students. Can you all hear me clearly enough, students? Is my voice clear, audible? Okay, yes, great. Let us quickly check with the poll as well. Is my voice audible very clearly to everyone? Just give a quick poll about the voice. For some people, it might be like slightly breaking. Is it clear enough for most of you students? आवाज क्लियर आ रही है या नहीं ये पोल पे बताइएगा स्टूडेंट्स. Okay, it is seeming to be clear for everyone. Yeah, fantastic. Great. Only आनंद के लिए ब्रेक हो रही है ऐसा उसको लग रहा है. बाकी एवरीवन इज हैविंग क्लियर. चलो ठीक है. Yes, done. Yeah, blue screen just for the change. Just because we are having revision तो start मैंने ऐसे किया वैसे screen को हम change करेंगे. We will change it slightly. Let's make it dark blue. Okay, let us make it dark blue. Slightly this color. Yes. And we are revising the chapter by name units and dimensions. So let us start with the units thing. मैं academy से ही हूँ बच्चों. I'm right in the academy. So this is about units, and in this chapter we started with the introduction of various systems of units. We have already known in our school time what is MKS system, what is CGS system, what is FPS system. These systems of units we are already knowing. These systems of units we were already knowing in the school time by their names at least. So MKS mein M was for meter, K was for kilogram, and S was for second. S is for second everywhere. Okay, all systems mein this second is the unit of time. But others change. यहाँ पे this is for centimeter, this is for gram. यहाँ पे FPS में F is for foot, P is for pound, etc. तो हमने देखा कि अलग अलग कंट्रीज में ये अलग अलग स्टैंडर्ड्स है. अलग अलग कंट्रीज में these अलग अलग standards are there. तो बाद में there was a conference by major scientists of the world, an international conference, and in French they had called it as System D International. They designed a new system called as SI system. They designed a new system of standard system called as SI system. SI को फ्रेंच वर्ड इट इज इंटरनेशनल डी सिस्टम, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम. ओके, इंटरनेशनल सिस्टम आप उसको इंग्लिश में कह सकते हो, फ्रेंच में कहते हैं सिस्टम में डी इंटरनेशनली. तो ये डिसाइड हुआ इसमें कि वी विल यूज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. ठीक है, वी विल यूज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, and two supplementary quantities और इनके यूनिट्स भी डिसाइड किए गए और यूनिट्स को डिफाइन भी किया गया. व्हाट वेर दो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज स्टूडेंट्स? व्हाट वेर दो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज? देयर वाज मास, लेंथ, time, etc. Okay, some people are saying that blue color को change कर देते हैं क्या? Black was better. Generally black is best in this. Yes, I think आंखों को blue से थोड़ी तकलीफ ही जा रही होगी. Yes, black is certainly better. So mass, length, time, ये तीन हुई.
और ये ज्यादा से ज्यादा यूज होती है, मास, लेंथ, टाइम. आफ्टर दैट यू हैव इलेक्ट्रिक करंट, you have temperature. Yes, you have temperature. You have you have luminous intensity, and you have amount of substance. देखो, एक कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स होती है, वो कि आपको पूछा क्वांटिटी का नाम और आप बता देते हैं यूनिट. ठीक है, क्वांटिटीज अलग होती है और यूनिट अलग होता है. ये हुए 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. ओके, और इसके ऐसा यूनिट अलग होंगे स्टूडेंट्स. ठीक है ना. कई बार 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिस्ट में कोई कोई बता देता है मोल. क्या मोल ये क्वांटिटी है स्टूडेंट्स? क्या मोल ये क्वांटिटी है क्या? नहीं. मोल इज अ यूनिट. मोल इज अ यूनिट स्टूडेंट. जैसे मास इज अ क्वांटिटी और यूनिट है उसका किलोग्राम. एसआई यूनिट है उसका किलोग्राम. ठीक है, नॉट ग्राम. ग्राम नहीं है, किलोग्राम है उसका एसआई यूनिट, विच इज डिनोटेड एज स्मॉल केजी. तो यूनिट का सिंबल है, उस एसआई यूनिट का सिंबल है स्मॉल के जी. ओके, कैपिटल के नहीं चलेगा. कैपिटल के करेंगे तो गलत हो जाएगा. ओके, कैपिटल के जी वगैरह करेंगे तो वो गलत ऑप्शन हो जाएगा, गलत आंसर. स्मॉल के जी. ओके, लेंथ का जो है यूनिट मीटर ही है, एमईटीआर मीटर, उसका सिंबल स्मॉल एम. टाइम के लिए अगेन सेकेंड, उसका सिंबल स्मॉल एस. What about electric current? What about electric current? Unit is ampere. Small a जरूरी है जब पूरा नाम लिख रहे हैं. We have studied these rules also आगे जाके, कि रूल्स में क्या था कि whenever scientist name is there, तो पूरा नाम लिखते समय स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है, लेकिन सिंबल लिखते समय कैपिटल. ओके, इस चीज को मैं फोकस करूंगा कि यहाँ पे ये ए स्मॉल होना जरूरी है, लेकिन ये ए कैपिटल होना जरूरी है. आई एम जानबूझ के आई एम अंडरलाइनिंग दिस, कि एम्पियर पूरा लिखते समय स्मॉल ए, लेकिन सिंबल लिखते समय कैपिटल है, बिकॉज वो साइंटिस्ट का नाम है. सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन इन केस ऑफ टेम्परेचर. स्मॉल के से टेम्परेचर शुरू होगा, बिकॉज वो भी साइंटिस्ट का नाम है. सो टेम्परेचर का यूनिट स्मॉल के ई एल वी आई एन, केल्विन, और सिंबल इज कैपिटल के. लुमिनस इंटेंसिटी वी हैव कैंडेला. ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये कैंडल पर से आया हुआ है. जो आप अपने घर में कैंडल होती है, मेणबत्ती होती है ना, तो उस पर से. तो स्मॉल सी डी. ओके, स्मॉल सी डी, कैंडल से कैंडेला, उसका स्मॉल सी डी. एंड देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है एम ओ एल ई. एम ओ एल ई पूरा लिखेंगे तो एम ओ एल ई, और सिंबल लिखेंगे तो एम ओ एल. सिंबल लिखेंगे तो स्मॉल एम ओ एल. ठीक है, ये हुए 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स. दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आती है स्टूडेंट्स, उनकी भी बात कर ली थी हमने. दो सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटीज आती है, दोनों एंगल से संबंधित है. एक जस्ट 2D एंगल है, एक 2D में एंगल आता है, और एक 3D में एंगल आता है. जो 2D में आता है उसको क्या बोलते हैं हम? प्लेन एंगल बोलते हैं. इट इज कॉल्ड एज प्लेन एंगल, जिसको हम स्कूल लेवल तक डिग्रीज में मेजर कर रहे थे. और 3D में जो होता है दैट इज सॉलिड एंगल. ओके, तो उनके यूनिट्स है रेडियन. रेडियन, जिसको शॉर्ट में सिंबल लिखेंगे आर ए डी. और सॉलिड एंगल का है स्टेरेडियन. स्टेरेडियन, जिसका सिंबल लिखेंगे स्मॉल एस आर. ठीक है, स्मॉल एस आर. ओके, अच्छा, रही बात डेफिनेशंस की, तो एक क्लास में हमने सभी डेफिनेशन पे चर्चा भी की थी. ठीक है, डेफिनेशन पे चर्चा की थी, लेकिन मैंने बोला था ये डेफिनेशंस याद रखना जरूरी नहीं है. इसमें से कोई भी डेफिनेशन आपको याद रखना जरूरी नहीं है. हाँ, एक बात निकल के आई थी कि मोस्ट ऑफ दीज डेफिनेशन यूज सम और द अदर वैल्यूज, सम और द अदर कांस्टेंट वैल्यूज. तो हमने एनसीईआरटी का अपेंडिक्स खोल के बहुत सारे कांस्टेंट्स की चर्चा की थी. याद आ रहा है स्टूडेंट्स? वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस कांस्टेंट्स. we had discussed about various constants. So I am doing the same thing again.
we will in short discuss about the constants. Okay, somebody on our WhatsApp group is asking something to explain. Let me just read it. So, can you please explain right hand thumb rule in class? Certainly not right now, but today we are targeting units dimension first. So we will do that. Remind me at the end because camera we are able to on today, so we can explain right hand rule in the class also. Okay. So um, now I want to unshare this screen and we will share uh, the full screen in which I am going to open one book for you, which is a very well known book for all of you. You have been using that book, and on its last page of this chapter, on the last page in the book, there is something interesting diagram, some very interesting diagram which helps us understanding all these definitions. डेफिनेशंस याद नहीं रखना है बट फिर भी जितना हो सके हम समझ लेते हैं. आज तक सवाल नहीं पूछा है इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं पूछेंगे, हो सकता है सवाल पूछ ले. आप लोग सब लोग ऐसी प्रिपरेशन करना चाहेंगे कि आप कंप्लीट प्रिपेयर करके जाए, आपको कोई भी चीजें अननोन ना रहे इस हिसाब से. So I am coming to last page of this chapter from this book. Okay, ये है. Can you all see this, students? You're able to see the screen? ये एक डायग्राम दिख रही है, साथ साथ नाइस कलरफुल डायग्राम यू कैन सी. यस, इस डायग्राम को हम उठाते हैं और इस डायग्राम को हम ले लेते हैं ऑन द बोर्ड. ठीक है, लेट्स टेक इट ऑन द ओपन बोर्ड हियर. Yes, let's zoom it. बीच में आप हमें जो दिख रहे हैं स्टूडेंट, सातों यूनिट्स के सिंबल दिख रहे हैं. जहां से हमने स्टार्ट किया था, आज सब सातों सिंबल्स के यूनिट्स के सिंबल दिख रहे हैं, सातों के सिंबल दिख रहे हैं. और बाहर में जो चीजें दिख रही है स्टूडेंट्स, बाहर में जो चीजें दिख रही है वो आपको दिख रहा है स्पेशल कॉन्स्टेंट्स जिनका संबंध आता है इन डेफिनेशंस से. सो ऊपर से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, सेकेंड से स्टार्ट करते हैं. सेकेंड ये वेरी फंडामेंटली डिफाइन किया गया था यूजिंग डेल्टा न्यू सी एस. डेल्टा न्यू सी एस, क्या आपको याद आ रहा है स्टूडेंट्स ये सी एस क्या था, ये डेल्टा क्या था, है ना, न्यू क्या था? मैंने क्लास में थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन. न्यू ये जो है सिंबल, इट वाज अ सिंबल फॉर फ्रीक्वेंसी. यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स, इट इज अ फ्रीक्वेंसी. न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी होता है, डेल्टा फॉर चेंज होता है. तो यहाँ पे उसकी ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी की बात चलती है, ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी की बात चलती है. और नीचे सी एस जो सिंबल है, कैपिटल सी स्मॉल एस, दैट इज फॉर सीजियम. सीजियम, तो सीजियम की एटॉमिक क्लॉक होती है. ये चीजें समझना इतना आसान नहीं, इसलिए ये डिटेल्स आपको मैंने कहा है कि ये हमें डिटेल्स विल नॉट अंडरस्टैंड. एटॉमिक क्लॉक एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे ट्रांजिशन होता है, ये समझने जितना फिजिक्स हम 11th 12th में नहीं पढ़ पाते हैं. लेकिन सर्टनली बेसिक नाम हम याद रख लेंगे कि सीजियम, जिसका एटॉमिक नंबर और सबको याद है जेड वैल्यू 55. स्टूडेंट, सीजियम में जेड वैल्यू 55 और एटॉमिक नंबर की वैल्यू 133. एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक मास नंबर. ओके, जेड इज एटॉमिक नंबर, कैपिटल ए इज एटॉमिक मास नंबर. तो मास नंबर उसका 133 है. इसी से आपको और कुछ कंक्लूजन निकलते हैं स्टूडेंट्स. with the simple basic chemistry you might be knowing कि this is the number of protons, right? number of protons 55 है, number of electrons भी 55 है. okay,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 55 है। अच्छा, क्या अगर मैंने इस साल आपको एग्जाम में टेस्ट में सवाल पूछ लिया, मान लो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो क्या आप जवाब दे पाएंगे स्टूडेंट्स? इस सीजियम में जिसका एटॉमिक क्लॉक यूज करते हैं, उस सीजियम एटम में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? तो क्या आप बता पाएंगे कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? सब्ट्रैक्शन करेंगे, 133 इज टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, तो उसमें से प्रोटॉन्स का नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसमें से प्रोटॉन्स का नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है? 80 क्यों टाइप कर रहे हो स्टूडेंट्स? 80 कहाँ से आंसर आया? हाउ कम 80? मेरा तो 80 नहीं आ रहा है सब्ट्रैक्शन करके। सब्ट्रैक्शन 78 आ रहा है, करेक्ट, 78 इज द करेक्ट आंसर, राइट? तो 78 इसमें न्यूट्रॉन्स है। जैसे जस्ट सैंपल आई जस्ट टोल्ड यू कि कैसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ये जो फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट्स, असली में ये होती है हाउ मेनी टाइम्स पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज में होता है, ओके? तो ये एग्जैक्ट वैल्यू कुछ लोग लर्न कर सकते तो कर लो, मुझे एक मोबाइल नंबर के जैसे मैं इसको याद रखता हूँ जनरली, 91 92 91 92 63 17 70, 91 92 63 17 70 हर्ट्ज, ऐसे मुझे ये वैल्यू याद रहती है। 91 92 63 17 70 से दो दो आंकड़े करके याद करता हूँ, आप भी चाहो तो मेरे साथ याद कर ले सकते हो। वैसे ये वैल्यू कहीं पे फिजिक्स में इसकी आगे जरूरत है नहीं पड़ती, अगर सवाल बना तो बस इसी चैप्टर के लिए सवाल बनेगा, ठीक है? तो 9192631770 हर्ट्ज, हर्ट्ज हर्ट्ज मतलब ही पर सेकेंड होता है, ये है डेल्टा न्यू सीजियम की वैल्यू। उस पर से आपको कौन सा यूनिट बनाया गया है? सेकेंड की डेफिनेशन उस पर से आई, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ मीटर पे, क्योंकि मीटर यूज करता है सेकेंड की डेफिनेशन। आप एरोस देखिए ध्यान से, मीटर यूज करता है सेकेंड की भी डेफिनेशन यूज करता है वो, और एक कांस्टेंट यूज करता है कॉल्ड एज स्पीड ऑफ लाइट, और एक वैल्यू यूज करता है कॉल्ड एज स्पीड ऑफ लाइट, और एक वैल्यू यूज करता है कॉल्ड एज स्पीड ऑफ लाइट। ये स्पीड ऑफ लाइट का आंसर क्या था? स्पीड ऑफ लाइट का आंसर अप्रोक्सीमेटली आप याद करते हो, अप्रोक्सीमेटली आप याद करते हो 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू अगर आप लो तो इट इज 299792458 मीटर पर सेकेंड। एज अ टीचर मेरी ये वैल्यू याद होना नेचुरल है, इतने टाइम में पढ़ाता हूं तो याद हो जाती है वैल्यूज ये कई बार, लेकिन आपको ये याद होना एक्सपेक्टेड नहीं है, ओके? दिस आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू एग्जैक्टली रिमेंबर। हाँ, 299792458 अप्रोक्स वैल्यू हमें जरूर याद होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वैल्यू, ठीक है? तो अगर नीट में या JEE में इस साल मान लो सवाल पूछना ही है, तो टफ सवाल क्या क्या पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं कि मीटर की डेफिनेशन में, न्यू एसआई सिस्टम में मीटर की डेफिनेशन में कौन से कांस्टेंट का यूज होता है, कौन से कांस्टेंट का यूज होता है, कौन से कांस्टेंट का यूज होता है? ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट का यूज होता है, और एक हायर लेवल क्वेश्चन पूछेंगे तो इनडायरेक्टली कौन से और कांस्टेंट का यूज होता है, सी के अलावा इनडायरेक्टली और कौन से कांस्टेंट का यूज होता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, मीटर है, मीटर निकालना है आपको, मीटर निकालना है तो क्या करते हैं, सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है वो मीटर पर सेकेंड में है, मीटर पर सेकेंड पर से आपको मीटर निकालना है तो आपको सेकेंड भी पता चाहिए, इसलिए सेकेंड पर से एरो आ रहा है। तो मीटर की डेफिनेशन ये सेकेंड की डेफिनेशन भी यूज करती है, और उसकी वजह से इनडायरेक्टली कौन सा कांस्टेंट आ जाता है? डेल्टा न्यू सी एस, सीजीएम की फ्रीक्वेंसी वाला। वेरी गुड, जयदीप ने परफेक्टली जवाब बताया। इनडायरेक्टली प्लैंक्स कांस्टेंट नहीं आता है स्टूडेंट्स, प्लैंक्स कांस्टेंट नहीं आता है, प्लैंक्स तो आगे आएगा, अभी नहीं आ रहा है, अभी प्लैंक नहीं आ रहा है, ठीक है? अभी सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट यूज हो रही है, और सेकेंड की डेफिनेशन वाला डेल्टा न्यू सीजियम ये यूज हो रहा है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? डेल्टा न्यू
यूज हो रहा है। ठीक है, एच का कहीं एरो दिख रहा है क्या आपको? एच का एरो कहीं मीटर की तरफ आते दिख रहा है क्या? एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। एच का कहीं एरो अभी आपको दिख नहीं रहा है। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, उसका एरो आपको कहीं पे दिख नहीं रहा है अभी। उसका एरो आपको कहीं नहीं दिख रहा है अभी तक मीटर की तरफ। मीटर में उसका कोई एरो नहीं है स्टूडेंट्स। तो सेकेंड की बात की, मीटर की बात की। अब केजी की बात करते हैं। अब केजी की अगर मैं बात करूंगा तो यस, केजी के लिए हमको प्लैंक्स कांस्टेंट यूज होता है। तो सबसे पहले प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जानते हैं हम। प्लैंक्स कांस्टेंट की अप्रोक्स वैल्यू 6.6, बताइए। 6.626, 3 डेसिमल तक काफी है, इंटू 10 टू द पावर, ये याद रखना है स्टूडेंट्स, इंटू 10 टू द पावर -34। 10 टू द पावर -34, इसका यूनिट होता है स्टूडेंट्स जूल इंटू सेकेंड। जूल इंटू सेकेंड। ये जूल इंटू सेकेंड को ही आप लिख सकते हो केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हो। तो ध्यान से समझिए, ये जो है केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसमें से सेकेंड की डेफिनेशन हम ऑलरेडी जान चुके हैं, तो उसका यूज होगा। मीटर की डेफिनेशन हम ऑलरेडी जान चुके हैं, तो इसका यूज होगा। तो आपको एरो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? क्या आपको एरो समझ में आ रहा है? केजी के इसमें सेकेंड का भी एरो आएगा, मीटर का भी आएगा, मतलब सेकेंड का भी यूज होगा, मीटर का भी यूज होगा प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ साथ। केजी के लिए प्लैंक्स कांस्टेंट आ रहा है, डायरेक्टली प्लैंक्स कांस्टेंट आ रहा है, और इनडायरेक्टली सेकेंड की डेफिनेशन वाला सीजियम फ्रीक्वेंसी यूज होगी, और इनडायरेक्टली मीटर की डेफिनेशन वाला स्पीड ऑफ लाइट भी यूज होगा। ठीक है, चलो फैंटास्टिक। हम बहुत टफ प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये चीजें पूछी नहीं जा रही है एग्जाम में, फिर भी हम तैयारी कर रहे हैं। हो सके कि आ जाए इस बार तो आप लोग टॉप कर जाए, बाकी स्टूडेंट्स बहुत लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं। चलो आगे आते हैं, ये 3 हो गए। अच्छा, इसके बाद एम्पियर पे आ जाइए। एम्पियर पे आ जाइए। एम्पियर इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सादा सीधा है स्टूडेंट्स, बहुत सादा सीधा है, ज्यादा एरोज नहीं है। ठीक है, एक जो कांस्टेंट है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जो कांस्टेंट है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो कांस्टेंट है ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज उसे कहते हैं। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, डू यू नो दिस वैल्यू स्टूडेंट्स? you know this value 1.6 into 10 to the power -19 कूलम्ब। कूलम, कूलम को ही क्या लिख सकते हैं पता है? कूलम जो होता है वही होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, क्योंकि आपको याद होगा करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। करंट इज चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो चार्ज का यूनिट होगा करंट इनटू टाइम। करंट इनटू टाइम मतलब कूलम्ब इटसेल्फ इज एम्पियर इनटू सेकेंड। इसीलिए उस पर से आपको एम्पियर की डेफिनेशन डिफाइन होती है और सेकेंड का भी इस्तेमाल हो रहा है। डू यू सी द एरो? दिस एरो मैं उसको ग्रीन कलर में कर देता हूं। ये ग्रीन कलर का एरो विच इज सेकेंड से आ रहा है एम्पियर की तरफ। ओके, एम्पियर की तरफ, मतलब एम्पियर की डेफिनेशन भी सेकेंड को यूज, देखो सेकेंड सब जगह यूज हो रहा है। डू यू सी? सेकेंड को सबसे पहले डिफाइन किया और वो सभी में यूज हो रहा है, मोल छोड़ के। मोल छोड़ के, मोल को किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बाकी 6 के 6 में सेकेंड यूज हो रहा है। सेकेंड खुद है, और बाकी और मीटर में, एम्पियर में, केल्विन में, कैंडेला में, केजी में, सब जगह पे सेकेंड यूज हो रहा है। ठीक है, अच्छा केल्विन की डेफिनेशन पे आते हैं स्टूडेंट्स। केल्विन की डेफिनेशन पे आते हैं। केल्विन की डेफिनेशन पे आते हैं। केल्विन की डेफिनेशन इज यूजिंग अ कांस्टेंट। क्या आपको याद है? स्मॉल के। स्मॉल के इज फॉर व्हाट? क्या नाम है इस कांस्टेंट का स्टूडेंट्स? स्मॉल के, यहाँ पे कौन से कांस्टेंट का नाम है? इट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसलिए नीचे बी भी दिया गया है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू के बारे में मैंने आपको बहुत फैंटास्टिक चीज बताई थी, हमने रिवाइज की थी। दो चीजों का ये रेशो आता है, ये कांस्टेंट दो स्पेशल कांस्टेंट का रेशो है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज एक्चुअली रेशो ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। कैलकुलेशंस करके वैल्यू क्या आती है?
वैल्यू इसकी अप्रोक्सीमेटली आएगी 1.38 इंटू 10⁻⁻23। 10⁻⁻23 किस यूनिट में आएगा? जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन में आएगा। जूल पर केल्विन में आएगा। जूल पर केल्विन में आएगा। अच्छा, बिकॉज जूल पर केल्विन में है और आपको पता है हम जूल को ही क्या लिख सकते हैं? एवरीबडी नोज जूल को ही हम क्या लिख सकते हैं? जूल को ही हम क्या लिख सकते हैं? डायमेंशंस से आपको पता है केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये यूनिट ऐसा हो गया केजी पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इंटू केल्विन पर केल्विन। केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू केल्विन। कुछ लोगों को अगर ये चीज नहीं ध्यान आ रही है याद एग्जैक्टली तो मैं साइड में लिख के देता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। साइड में लिख के देता हूँ आपको। 1 न्यूटन जो होता है ये फोर्स इंटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई करके आता है, होता है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जो 1 जूल होता है उसमें और एक मीटर आ जाता है, मतलब इट इज 1 kg इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो न्यूटन और जूल मैंने आपको लिख के दिया। जिसी को हम डायमेंशन में भी आगे याद करते थे स्टूडेंट्स, तो शॉर्टकट में नहीं क्या बोलते थे कि फोर्स के डायमेंशन होते हैं 1 1 - 2, तो उसकी पावर्स है 1 1 - 2। और जूल के लिए क्या पावर्स है? 1 2 - 2 पावर्स है, बिकॉज इट इज एनर्जी या वर्क है, तो 1 2 - 2। ठीक है, तो वहीं पे आपको यूनिट में लिख दिया। अच्छा, ये सब मैं क्यों बता रहा था? क्योंकि हमें आ गए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पे, लेकिन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट में पर केल्विन आता है, तो लिए उसका इस्तेमाल करके केल्विन की डेफिनेशन आती है। लेकिन उसके अलावा कौन कौन लगेंगे स्टूडेंट्स, और कौन कौन से एरोज आ रहे हैं केल्विन की तरफ? देखो, सेकेंड का भी आएगा, केजी का भी आएगा और मीटर का भी आएगा। अग्रीड? देख रहे हो आप लोग एरो? क्योंकि आप, मैंने यूनिट लिख के दिया आपको, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यूनिट लिख के दिया। जूल पर केल्विन का मतलब ये केजी मीटर स्क्वायर पर से, तो केजी भी आएगा यूज में, इनडायरेक्टली मीटर का भी यूज होगा, सेकेंड का भी यूज होगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के साथ साथ। ओके स्टूडेंट्स, चलो। और इसके आगे लेट मी हैव कैंडेला। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट कैंडेला। कैंडेला के इसमें कैपिटल के सी डी करके एक चीज है। कैपिटल के सी डी करके एक चीज है। दिस थिंग इज लूमेन पर वॉट। दिस थिंग इज लूमेन पर वॉट। ये चीज हमने डेफिनेशन भी, मुझे लगता है आपके बैच में हमने डिस्कस अपने इस क्लास में नहीं की थी ये स्टूडेंट्स। ओके, कैपिटल डी नाम की चीज है। अपने महाराष्ट्र बुक की स्पेशलिटी है कि इसने बहुत अच्छे से आखिरी में समरी दी है, तो मैं ये ले रहा हूं। कैपिटल के सी डी नाम की जो चीज होती है, इट इज लुमिनस एफिकेसी ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन वगैरह 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 कुछ दिया हुआ है। ये बड़े बड़े डेंजर चीजें को आपको जरूरत नहीं है याद करने की। वैल्यू जो है उसकी 683 लूमेन पर वॉट। लूमेन पर वॉट। पर वॉट, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। अच्छा, वॉट भी आपको मैं बता दूं फिर वॉट क्या होता है? क्यों ना हम पढ़ ले स्टूडेंट्स की वॉट क्या होता है। वॉट भी याद कर लेते हैं। वॉट होता है यूनिट ऑफ पावर। 1 वॉट इज यूनिट ऑफ पावर। तो क्या मैं उसको लिख सकता हूं केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, क्योंकि उसके डायमेंशन आ जाते हैं 1 2 - 3। 1 2 - 3। यस स्टूडेंट्स, ये जो चीज है ना, ये अपने एनसीईआरटी अपेंडिक्स में भी नहीं थी, ये महाराष्ट्र बोर्ड बुक में है। इसलिए हम ये डिस्कशन में अपने छूट क्यों रह गया था, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में नहीं है अपेंडिक्स में। ठीक है, बट स्टेट बोर्ड में है, तो हम लोग थोड़ी ना छोड़ेंगे, हम तो ये भी तैयारी कर लेंगे। ठीक है, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अच्छा, लूमेन पर वॉट, अगर आप लोग स्टेट बोर्ड की बुक में हो, पेज नंबर 12 पे हो, मेरे साथ हो, तो आपको ये लूमेन पर वॉट, ये जो है पेज नंबर 12 पे, पेज नंबर 12 पे एकदम नीचे में आपको ये चीजें दिख रही है स्टूडेंट्स।
पेज नंबर 12 महाराष्ट्र बोर्ड बुक के आपको एकदम नीचे ये चीज दिखेगी। किसी के पास हार्ड कॉपी है तो देख सकते हैं, नहीं भी है तो मैं आपको आगे चीजें लिख के दे रहा हूं। ये जो लूमेन होता है ये होता है कैंडेला इंटू स्टेरेडियन। लूमेन जो होता है दैट इज कैंडेला इंटू स्टेरेडियन। ध्यान देना स्टूडेंट्स, लूमेन होता है कैंडेला इंटू स्टेरेडियन, ठीक है। और पर वॉट है, पर वॉट है मतलब वॉट वाली चीज उल्टी हो जाएगी, मतलब केजी का रेस टू -1 हो जाएगा, मीटर का रेस टू -2 हो जाएगा, और सेकेंड का रेस टू +3 होगा। ओके तो ये जो नंबर है 683 लूमेन पर वॉट, 683 लूमेन पर वॉट, ये क्या हो जा रहा है, लूमेन पर वॉट यूनिटी बन जा रहा है कैंडेला इंटू स्टेरेडियन पर केजी पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सॉरी पर नहीं, इंटू सेकेंड क्यूब, इंटू सेकेंड क्यूब। इस तरीके से ये हो जा रहा है। तो ये किस किस चीज का यूज करता है स्टूडेंट्स, ये किस किस चीज का यूज कर रहा है, देखो कैंडेला आ गया तो कैंडेला के डेफिनेशन में ये कांस्टेंट यूज हो गया। इसके साथ साथ स्टेरेडियन भी आएगा स्टूडेंट्स, ओके। यहाँ पे एक एरो इनडायरेक्टली मिसिंग है, इवन स्टेरेडियन का यूज कर रहा है ये, ओके। ये स्टेरेडियन नाम का जो होता है उसका भी यूज कर रहा है, इन लोगों ने ये नहीं दिया, चलो हम ये भी ऐड कर लेते, इट इज टेकिंग यूज ऑफ स्टेरेडियन ऑल्सो। स्टेरेडियन सप्लीमेंट्री में डिफाइन किया है, उसका भी यूज आ रहा है। तो कैंडेला का यूज आ रहा है, स्टेरेडियन का यूज आ रहा है, केजी का यूज आ रहा है जरूर, इसलिए केजी वाला एरो आपको दिखेगा, केजी वाला एरो दिखेगा, मीटर का यूज आ रहा है जरूर, और सेकेंड का भी यूज आ रहा है, ठीक है। यस, तो ये चीज है, okay? इन्होंने डायग्राम में नहीं दिया है कि सॉलिड एंगल वाले स्टेरेडियन का यूज हो रहा है कैंडेला केस में, ठीक है। दैट इज नॉट गिवन इन द डायग्राम, सो मैंने डायग्राम में ये चीज अपग्रेड कर दी। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको अभी ग्रुप पे सेंड कर दूंगा कुछ मिनटों में। विल जस्ट फिनिश मोल का बाकी अपना डिस्कशन। लास्ट थिंग इज डिस्कशन ऑफ मोल, डिस्कशन ऑफ मोल, डिस्कशन ऑफ मोल। आप लोगों के सवाल पे मैं आऊंगा स्टूडेंट्स, जस्ट लेट मी फिनिश दिस। मोल क्या यूज कर रहा है, मोल तो बेचारा अकेला अपना खुश है, वेरी नाइसली वो अपना अपने में उसने सब कुछ काम कर दिया। किसका यूज कर रहा है वो, एवोगैड्रो नंबर का, सिंपली एवोगैड्रो नंबर का यूज कर रहा है। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 6.023, कहीं बुक्स में, कुछ बुक्स में 6.022, ओके, इनटू 10⁻23 पर मोल। एवोगैड्रो का यूनिट होता है पर मोल, एवोगैड्रोस नंबर इज पर मोल। ये आपको मैंने समझाते समय बताया था, जैसे केला खरीदते हैं, बनानास खरीदते हैं, तो वी हैव 12 बनानास पर डजन, है ना, तो 12 पर डजन होता है, 12 पर डजन होता है। वैसे ये एक नंबर है लेकिन 12 नहीं है, इट्स बिग नंबर, इट्स अ बिग नंबर, तो उसको पर मोल ऐसा लिखेंगे। तो नेचुरली मोल की डेफिनेशन के लिए सिर्फ एवोगैड्रो नंबर का यूज होता है, इसमें ना कोई सेकेंड का यूज होता है, ना कोई मीटर का, ना कोई केजी का, ना कोई और चीज का यूज होता है। ये प्योरली अपनी एक अलग ही डेफिनेशन है, ओके स्टूडेंट्स। चलिए, अब बोलिए आप लोगों के सवाल, अगर कुछ इस पेज पे, इस पेज से संबंधित कोई सवाल है तो, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको मैं सेंड करता हूं। किसी ने क्या पूछा है सर, डेल्टा न्यू में, सर डेल्टा न्यू सीएस में पर सेकेंड का मतलब क्या है, हर्ट्ज ही पर सेकेंड होता है, हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी है। डेल्टा न्यू सीएस बेटा ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी है, सीजियम के एटॉमिक क्लॉक की वो एक फ्रीक्वेंसी का नंबर है हर्ट्ज में। तो ये जो हर्ट्ज होता है, HZ, हर्ट्ज साइंटिस्ट का नाम है, हर्ट्ज जो होता है, तो 1 हर्ट्ज का ही मतलब होता है 1 पर सेकेंड, पर सेकेंड टाइम का रेसिप्रोकल, इसीलिए तो टाइम के डेफिनेशन में वो काम में आ गया, ठीक है। टाइम की डेफिनेशन में वो फ्रीक्वेंसी काम में आ गई, तो 1 हर्ट्ज का ही मतलब है 1 पर सेकेंड, 1/सेकेंड, ठीक है, ठीक है। चलो, मोबाइल का हर्ट्ज क्या होता है, मोबाइल का हर्ट्ज,
मोबाइल में कहाँ हर्ट्ज होता है? फ्रीक्वेंसीज, प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसीज वो सेम हर्ट्ज है बेटा। मोबाइल में प्रोसेसर की जो फ्रीक्वेंसीज होती है, कोई भी प्रोसेसर की, मोबाइल हो कंप्यूटर हो, उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है गीगा हर्ट्ज में, आप उनकी फ्रीक्वेंसी देखोगे वो सेम चीज है। गीगा हर्ट्ज में सेम चीज है वो। okay? वो सिस्टम क्लॉक की फ्रीक्वेंसी होती है। ये आप कंप्यूटर साइंस में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में आप चीजें पढ़ेंगे। इंजीनियरिंग में जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करेंगे, मेरे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करेंगे, उन लोगों को ये फर्स्ट सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे कि सिस्टम क्लॉक होती है। कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर होता है उसकी एक क्लॉक होती है, खुद की उसकी एक क्लॉक होती है। वो एग्जैक्टली सीजियम क्लॉक नहीं होती है, लेकिन इट इज अ सिस्टम क्लॉक मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स इन डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर। इंटेल नाम की कंपनी है यूएस में, इंटेल नाम की कंपनी आपको पता होगा, फेमस कंपनी। इंटेल इनसाइड के प्रोसेसर्स आते हैं, मोस्ट फेमस प्रोसेसर कंपनी। तो वो गीगा हर्ट्ज, तो हर्ट्ज वो सेम चीज है स्टूडेंट्स। पूरे साइंस में दुनिया में कहीं पे भी आप हर्ट्ज देखोगे तो वो यही चीज है, पर सेकेंड। सर आप तो टीचर हो ना? अरे भाई, तो टीचर क्या मैं 10वीं पास करके आ गया क्या यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करके आया है ना। तो आई हैव स्टडीड 2007 to 11 बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। सो सुंदर पिचाई वाले कॉलेज से मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हुआ था। आई हैड द सेम टीचर एज सुंदर पिचाई टीचर। सुंदर पिचाई के जो कंप्यूटर के टीचर थे, ही वाज माय एचओडी ऑफ कंप्यूटर साइंस, प्रोफेसर पार्थ चक्रवर्ती। So, 10 साल पुरानी बात है, अभी 10 साल हो गए मुझे आईआईटी से बाहर निकल के। सो मैं 10 साल से टीचर हूँ। आई एम टीचिंग JEE एंड नीट स्टूडेंट्स फ्रॉम 10 years। चलो, हाँ, ये प्रोसेसर की न्यूज़ आपको मेरे से ज़्यादा पता होती है। इंटेल इनसाइड i9 लेटेस्ट वगैरह क्या है, ये तो आजकल मैं भी ट्रैक नहीं कर रहा हूँ। मैंने रिसेंटली कोई नया गैजेट नहीं खरीदा है, सो आई डोंट नो व्हाट इज द लेटेस्ट प्रोसेसर। इस बारे में आपको ज़्यादा पता रहेगा। ओके, ओके, ओके स्टूडेंट्स। सर आपका रैंक क्या था? ओ बाप रे, ये वापस डिस्कशन ना फिर इस पे चला जाता है। दिस बिकम्स लाइक, फिर लेक्चर में से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आपको एक बार आईआईटी का नाम आ गया कि सबको है ना, इतना एंथुजियाज्म बढ़ जाता है। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू टेक दिस स्नैपशॉट नाइसली। फर्स्टली जो आपके मोस्ट काम की चीज़ है वो मैं पहले कर रहा हूँ। I'll take a full snapshot of this page. It's a fantastic revision. जो लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं खुद लोग तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये अभी के अभी इसका कॉपी आपको आ रहा है व्हाट्सएप पे। मेरा रैंक आपको इतनी इच्छा हो रही है, टॉपिक क्यों चेंज कर दिया पूछ रहे हो, तो भाई बता देता हूँ। मेरा MST CET का रैंक 1 था। उसका स्टेट रैंक ही ऑल इंडिया रैंक होता है, क्योंकि बाकी स्टेट के भी स्टूडेंट्स देंगे तो महाराष्ट्र के कहलाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में एडमिशन लेनी पड़ेगी। यस, मेरा JEE मेन का जो था वो ऑल इंडिया रैंक था 67। JEE एडवांस का जो था वो मेरा ऑल इंडिया रैंक था, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर था 529। दिस इज ऑल ईयर 2007। दैट्स ऑन द चैट बॉक्स। नाउ यू आर, ठीक है, गिव मी हाफ, गिव मी हाफ अ मिनट स्टूडेंट्स, बिकॉज मैं मेरे कंप्यूटर पर से यहाँ के व्हाट्सएप री लॉग इन करूंगा, सो दैट आपको इमीडिएटली ये इमेज मिल जाए और फिर हम आगे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं।
चलो स्टूडेंट्स, ये इमेज आपको मिल चुकी है अच्छे से डिटेल में। नाउ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, स्टार्स एंड ऑल, यस, अब उसी पे आएंगे। नेक्स्ट चीज, ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट ओनली। सर, ये आपके आईज को कुछ हुआ है क्या? कैमरा में वैसे दिख रहा है? नहीं 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 स्टूडेंट्स, दिस कैमरा रिजोल्यूशन इज वेरी लेस। यहाँ पे अभी जो अकेडमी में ये जो वेब कैम है, उसके रिजोल्यूशन से आपको ऐसा कुछ लग रहा होगा। आई एम ऑल वेल, नो इश्यूज। अच्छा, यस, नाउ वॉइस इज क्लियर स्टूडेंट्स? री इन करने के बाद नाउ इज इट बेटर, नॉर्मल? चलो, क्लियर, गुड। Yes, now you can hear me again, students. Don't worry. Now you can hear me again. And yes. So far today, what all things we have talked? We have talked about, can you see the open board clearly? Yes. Now this is not yours. This is my last class, 12th standard wala. ये चीज 12th की है, ये नहीं। Okay. So this is, हाँ, पहला पेज मैंने लिखा था वो दूसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था स्टूडेंट्स, जहाँ 7 फंडामेंटल हमने नाम लिखे थे, उसके सिंबल्स लिखे थे। एंड दिस इज व्हाट वी हैव डन राइट नाउ। इसके बाद जो रूल्स थे छोटे छोटे स्टूडेंट्स, उसकी रिवीजन की जरूरत नहीं है, कि है शॉर्ट में कर लेते हैं। मेरे ख्याल से 3-4 रूल्स थे, जो रूल्स लिखने थे अबाउट यूनिट्स। रूल्स जो थे यूनिट्स के समय लिखने के, उस रूल में था मेनली एक चीज जो थी वो साइंटिस्ट नेम वाली चीज थी। तो साइंटिस्ट नेम जो था, उसके 2 रूल थे। साइंटिस्ट का नेम होगा तो उसको फुल लिखते समय क्या लिखना है, और सिंबल लिखते समय क्या करना है। सिंबल लिखते समय कैपिटल से स्टार्ट करना है, फुल लिखते समय स्मॉल से स्टार्ट करना है। ये 2 रूल थे। देन देयर वाज अ रूल अबाउट पंक्चुएशन मार्क्स। कभी भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होंगे, कभी भी पंक्चुएशन मार्क्स सिंबल में नहीं होंगे, पंक्चुएशन मार्क्स सिंबल में नहीं होंगे। और एक चीज थी, प्लूरल लगाते समय, प्लूरल करते समय सिंबल में एक्स्ट्रा का एस नहीं लगाना है, एक्स्ट्रा का एस नहीं लगाना है। तो मीटर्स लिखते हैं तो चलेगा, लेकिन मीटर्स को आपने एम इंटू एस, ऐसा मीटर्स नहीं कर देना, एम के आगे एस नहीं लगाना है। मीटर्स को भी सिर्फ एम लिखना है ना, आगे एस नहीं लगाना है। ये 4 बेसिक रूल्स हमने देखे थे। स्क्रीन इज विजिबल ना स्टूडेंट्स? शर्विल को नहीं दिख रही है? सब लोग, स्क्रीन इज क्लियर विजिबल ना? हाँ, ठीक है, चलो। ऑल राइट, इसके बाद हमने देखा था रेडियन और स्टेरेडियन की डेफिनेशन कैसे आती है। रेडियन की डेफिनेशन जो थी, रेडियन की जो डेफिनेशन थी स्टूडेंट्स, इट इज डिफाइंड यूजिंग आर्क ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल का एक हिस्सा ले लेंगे, एक सर्कल का हिस्सा ले लेते हैं। अगर एंगल थीटा इस तरीके से है कि आर्क लेंथ एल बनती है, आर्क लेंथ एल बनती है, रेडियस आर है, तो एंगल थीटा in radian is defined as arc length divided by radius. Arc length divided by radius, इससे करते हैं तो आपको मिलता है थीटा इन रेडियन। नेचुरली इस पर से हमने एक रिलेशन निकाला हुआ था, नेचुरली इस पर से हमने एक रिलेशन निकाला हुआ था। कौन सा रिलेशन निकाला हुआ था? कि अगर फुल सर्कल लेते हैं, फुल सर्कल लेते हैं, तो हमें आर्क लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई आर आती है। तो उसको फिर आर से डिवाइड कर देते हैं, तो थीटा क्या आता है? 2 पाई रेडियन।
तो 2 पाई रेडियन, और 2 पाई रेडियन यही जो होगा ये हो गया 360 डिग्रीज। 2 पाई रेडियन ही हो गया 360 डिग्रीज। उस पर से ही आपका रिलेशन ये भी बन जाता है कि पाई रेडियन जो होगा इट विल बी 180 डिग्रीज। पाई रेडियन विल बी 180 डिग्रीज। यहां तक आए थे। फिर जन स्टेरेडियन की जब बात आती है तो तब 2D काम नहीं चलेगा, 3D काम चलेगा। तो 3D में क्या करते हैं, 3D में आपको ऐसा एक स्फीयर आप इमेजिन करेंगे, सर्कल के बदले क्या आएगा, स्फीयर आ जाएगा। और स्फीयर का कुछ हिस्सा, स्फीयर का कुछ हिस्सा एरिया ऐसे सबटेंड होगा, स्फीयर का कुछ हिस्सा आएगा। तो यहां पे जो एंगल आएगा, इस एंगल को मान लो ओमेगा नाम दिया था हमने, कैपिटल ओमेगा, ओहम जैसा सिंबल रहता था। तो ये एरिया की वैल्यू और ये रेडियस की वैल्यू पर से सॉलिड एंगल का फॉर्मूला था एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। यहां जो आंसर आता था इट वाज इन स्टेरेडियन, एसआर में इसका आंसर आता था। तो नेचुरली अगर फुल स्फीयर लेंगे तो फुल स्फीयर में कितना एंगल आएगा स्टूडेंट्स, फुल स्फीयर का एरिया होता 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो फुल स्फीयर आएगा 4 पाई स्टेरेडियन। कंप्लीट स्फीयर आएगा 4 पाई स्टेरेडियन। इसी पर से क्लास में हमने और कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ क्यूब का मैंने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना के आपको क्यूब क्यूबॉइड के कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे। आज क्वेश्चन रिवाइज नहीं करेंगे हम, मेनली ऐसी सब थ्योरी रिवाइज करेंगे। एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? अच्छा, एक और चीज आगे बता देता हूँ स्टूडेंट्स, एक और चीज बता। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसी पर से हमने 1 रेडियन की वैल्यू निकाली थी। 1 रेडियन की वैल्यू पाई से डिवाइड करके 180 डिवाइडेड बाय पाई, इतने डिग्रीज, जिसका आंसर आ रहा था आपका अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्रीज या 57.3 डिग्रीज। ऐसे अप्रोक्सीमेटली हम इसको याद करेंगे। ओके, ऐसे हम उसको अप्रोक्सीमेटली याद करेंगे। और एक बात हुआ करती थी, 1 डिग्री के अगर 60 टुकड़े कर देते हैं, 1 डिग्री को अगर आप डिवाइडेड बाय 60 करते हैं, 1 डिग्री को आप 60 से डिवाइड करते हैं, तो एक छोटा यूनिट मिलता था जिसको 1 मिनट बोलते थे। और इसको और 60 से डिवाइड करते हैं तो इसको 1 सेकेंड बोलते थे। राइट, ये जो पहली चीज है उसको इसको डिग्री के जो टुकड़े हैं इसको 1 मिनट बोलते थे, और उसके 60 टुकड़े को सेकेंड बोलते थे। ठीक है, सेकेंड बोलते थे। 1 डबल डैश, 1 डैश को मिनट बोलते थे, 1 डबल डैश को सेकेंड बोलते थे। ये छोटे छोटे एकदम एंगल्स। ये कहाँ यूज होता है, आगे पैरेलैक्स में ये चीज यूज होती है। आगे पैरेलैक्स में ये चीज यूज होती है। राइट, पैरेलैक्स मेथड जब हमने करी थी उसमें ये चीज यूज हुई थी। चलो, ऑल क्लियर ऑन दिस पेज स्टूडेंट्स? एवरीथिंग क्लियर ऑन दिस पेज? हाँ, खांडेकर नहीं बेटा, डिग्रीज नाम की कोई चीज नहीं होती। 4 पाई स्टेरेडियन को कुछ 360 लिखेंगे क्या? नहीं, सॉलिड एंगल में कोई डिग्री नाम की चीज नहीं होती, ये मैंने क्लास में बताया था। ठीक है, तो इसलिए वहां पे कोई कन्वर्शन नहीं होगा कि स्टेरेडियन टू डिग्री नाम की कोई चीज 3 डायमेंशन में नहीं होती डिफाइन। नाउ नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, लेट अस कम टू द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। जब हम देख रहे थे मेजरमेंट ऑफ लेंथ नाम की हम चीज देख रहे थे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ नाम की चीज देख रहे थे, तो कुछ कुछ छोटे छोटे लेंथ के यूनिट और बड़े बड़े लेंथ के यूनिट देखे थे। इसके भी पहले हमने प्रीफिक्सेस देखे थे स्टूडेंट्स, याद आ रहा है आपको? प्रीफिक्सेस देखे थे। प्रीफिक्सेस मतलब क्या था? प्रीफिक्सेस मतलब याद आ रहा है आपको? छोटे प्रीफिक्सेस और बड़े प्रीफिक्सेस। 10⁻1, -1, -2, ऐसे सब ने जाके हमने प्रीफिक्सेस देखे थे। 10⁻, मान लो मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ, 10⁻6 ऊपर लेता हूँ, 10⁻3, 10⁻2, 10⁻1, फिर 6 के आगे 10⁻9, 10⁻12, 10⁻15, 10⁻18 वगैरह वगैरह। तो ये क्या प्रीफिक्सेस थे स्टूडेंट्स? 10⁻1 था डेका, डेका जिसको शॉर्ट में डी करके बोलते थे, डी ए करके बोलते थे, डी ए करके बोलते थे। 10⁻2 वॉज हेक्टो स्टूडेंट्स, जिसको एच करके डिनोट करेंगे। 10⁻3 वॉज किलो, ये तो हम रेगुलरली यूज करते थे।
उसके आगे था मेगा गीगा, याद किया था हमने, 10⁻6 10⁻9 मेगा गीगा। ओके, मेगा कैपिटल एम, गीगा कैपिटल जी प्रीफिक्स, मेगा गीगा। फिर टेरा पेटा एक्सा, टेरा पेटा एक्सा, टेरा पेटा एक्सा, टेरा पेटा एक्सा, कैपिटल टी कैपिटल पी कैपिटल ई, ये चीजें की थी। ये बड़े प्रीफिक्सेस थे। दो एक्स्ट्रा भी बताया था मैंने आपको, ये ग्रुप पे सेंड किया था शुरू के दिनों के लेक्चर जिन्होंने अटेंड किए हैं। क्या था, 10⁻21 और 24, यस, जेटा और योटा। ओके, जेटा एंड योटा, 10⁻21 was zeta students, and 10⁻24 was yotta, highest was yotta, if I remember it correct, zeta and आगे था योटा। अच्छा, निगेटिव पावर्स में जाते हैं, मतलब छोटा छोटे नंबर जाएंगे तो 10⁻−1 था डेसी, डेसी जिसको डी करके डिनोट करते हैं, 10⁻−2 था डेसी। के बाद सेंटी, सेंटीमीटर फेमस है तो सेंटी का सी, सेंटी के लिए सी। 10⁻−3 वॉज मिली, मिली के लिए वी हैड, मिली के लिए वी हैड स्मॉल एम। 10⁻−6, 10⁻−6 वॉज माइक्रो, माइक्रो के लिए म्यू नाम का सिंबल था। 10⁻−9 वॉज नैनो, नैनो के लिए स्मॉल एन। और देन आगे के तीन क्या थे, आगे के तीन एक साथ याद करना बेटर है। यस, पिको फेमटो एटो, पिको फेमटो एटो, पिको फेमटो एटो, पिको फेमटो एटो, पिको फॉर स्मॉल पी, फेमटो स्मॉल एफ, एटो स्मॉल ए। ये तीन चीजें थी स्टूडेंट्स, दिस थ्री। तो इस तरीके से, और दो एक्स्ट्रा बताए थे, वैसे ही जैसे जेटा योटा था वैसे ही यहाँ पे क्या था, जेप्टो योक्टो, वेरी गुड, जेप्टो योक्टो। 10⁻−21, 21, 10⁻−21 वॉज जेप्टो, स्मॉल जेड करके इसको डिनोट करेंगे। और 10⁻−24 वॉज योक्टो, योक्टो। ओके, योक्टो स्मॉल वाई, जेप्टो स्मॉल जेड। और बड़े वाले में जो पॉजिटिव पावर उसमें था, योटा को कैपिटल वाई था, जेटा को कैपिटल जेड था। ये सब हो गई बात प्रीफिक्सेस की। अच्छा, लेंथ के मेजरमेंट में आते हैं स्टूडेंट्स। लेंथ के मेजरमेंट में कुछ छोटे छोटे में, क्या आपको याद आ रहा है, फर्मी नाम की चीज हमने पढ़ी थी। वन फर्मी नाम की जो चीज थी, इट वॉज 10⁻−15 मीटर ना, मतलब इसको ही मैं 1 फेमटोमीटर भी लिख सकता हूँ। 1 फेमटोमीटर, फर्मी का सिंबल सिर्फ एफ करके भी था, तो फर्मी का सिंबल सिर्फ एफ करके था। ओके, वो तो 1 फर्मी, 1 फर्मी इज इक्वल टू 1 फेमटोमीटर। 1 फर्मी को हम 1 फेमटोमीटर भी बोल सकते हैं। फर्मी का एफ जो है वो उसका खुद का सिंबल है, और फेमटो जो है वो प्रीफिक्स है, फेमटो प्रीफिक्स है, तो फेमटोमीटर करते हैं। देन देयर वाज 1 एंगस्ट्रॉम स्टूडेंट्स, 1 एंगस्ट्रॉम याद आ रहा है, 1 एंगस्ट्रॉम जो था, इसको सिंबल कैसा दिखाते थे, 1 एंगस्ट्रॉम को दिखाते थे 1 ए के ऊपर 0, ऐसा उसका सिंबल था 1 एंगस्ट्रॉम। इट इज 10⁻−10 मीटर्स, 10⁻−10 मीटर, जो कि नैनोमीटर से थोड़ा छोटा है। तो इसको मैं 0.1 नैनोमीटर भी लिख सकता था, और पिकोमीटर से 100 गुना बड़ा है तो 100 पिकोमीटर भी लिख सकता था। चाहो तो 5 जीरो देके मैं, 5 जीरो देके मैं इसको फेमटोमीटर भी लिख सकता हूँ, है ना। ऐसे बहुत कन्वर्शन कर सकते हैं। इस पे आपको सवाल पूछेंगे, इसीलिए हमने लॉज ऑफ इंडाइसिस रिवाइज किए हुए थे। लॉज ऑफ इंडाइसिस का यूज करके हम ये सब चीजों में इंटर कन्वर्शन फाइंड कर सकते थे। इसके आगे और 2 यूनिट, 3 यूनिट आते हैं बड़े बड़े वाले में। एक आता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट था एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। इसका अप्रोक्सीमेट आंसर हुआ करता था स्टूडेंट्स, इसको अप्रोक्सीमेटली मैं लिख सकता हूँ 1.5, लिख दे रहा हूं मैं, एक्चुअली 1.49 वगैरह कुछ, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स,
1.496 करेक्ट। अप्रॉक्स में मैं डेढ़ याद कर रहा हूँ। 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। दिस इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। इसके आगे था एक चीज, लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर मतलब लाइट एक साल में कितना ट्रैवल करेगा। तो इसको स्पीड ऑफ लाइट को आप एक साल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक साल को 365 डेज, डेज को मिनट, आवर्स, मिनट, सेकेंड में सब कन्वर्शन करके मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ये आंसर आ रहा था अप्रोक्सीमेटली 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स आ रहा था। 10⁻15 मीटर्स आ रहा था। और उसके आगे एक चीज होती है, 1 पारसेक। 1 पारसेक नाम की एक चीज होती है। 1 पारसेक नाम की चीज होती है। 1 पारसेक का आंसर आता है स्टूडेंट्स, 1 पारसेक नाम का एंगल का आंसर आता है 1 AU डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, आर्कसेक। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल में शॉर्टकट में बोला था, इसको AU अपॉन आर्कसेक, आर्कसेक बोल सकते हैं। नीचे सेकेंड क्या है, जो डिग्री के 60 टुकड़े के 60 टुकड़े होते हैं, उसी को सेकेंड या आर्क सेकेंड बोलते थे। आर्क सेकेंड, आर्क सेकेंड। तो 1 AU बाय आर्क सेक, ये चीज आती थी। इसका अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आता था स्टूडेंट्स? इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आता था 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर्स। कि ये बड़ा था तो, और ये अच्छा खासा बड़ा है। और इसी को हमने लाइट ईयर के कितने गुना है, 3.25 गुना, करीब करीब 3.25, 3.26 लाइट ईयर भी है। ओके, इसमें से जो चीज याद रखनी है, क्या मैं उसको बॉक्स कर दूं स्टूडेंट्स? जो जो चीज हमें याद रखनी है, क्या मैं उसको बॉक्स कर दूं? क्या मैं एंगस्ट्रॉम को 10⁻−10 है, ये याद रखना पड़ता है, ये बॉक्स कर दूं? क्या मैं इसको बॉक्स कर दूं? और नीचे वाले में मैं बॉक्स करूंगा इसको। इतनी चीजें, इतनी चीजें अगर हमें याद है तो मोर देन इनफ हम सवाल कर सकते हैं। ओके, मोर देन इनफ हम ये सब सवाल कर सकते हैं। ऑल क्लियर स्टूडेंट्स? एनीथिंग ऑन दिस पेज? नहीं। तो अगले पेज पे मैं पैरेलैक्स मेथड साथ साथ समझा देता हूँ। पारसेक का नाम आया है, इसलिए पैरेलैक्स मेथड हम साथ साथ में समझ लेते हैं। तो पैरेलैक्स मेथड क्या थी? बड़े बड़े डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए, बड़े बड़े डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए पैरेलैक्स मेथड हुआ करती है। पैरेलैक्स मतलब नथिंग बट एक छोटा सा एंगल बनेगा। छोटा सा जब एंगल बनेगा, दूर के डिस्टेंसेस होंगे तो, दूर दूर के डिस्टेंसेस करेंगे तो एक छोटा सा अगर एंगल बनता है, तो उस मेथड को पैरेलैक्स मेथड हम कहते थे। उस मेथड को पैरेलैक्स मेथड कहते थे स्टूडेंट्स। तो यहां पे आई एम शोइंग सन और अर्थ। सन और अर्थ, अर्थ ही रिवॉल्व करेंगी सन के अराउंड एक ऑर्बिट में। कि इट्स नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली स्फेरिकल, थोड़ी इलिप्टिकल होती है एक्चुअली। लेकिन ये एवरेज डिस्टेंस अगर मान लिया जाए कि दिस इज एवरेज डिस्टेंस, दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर ये एवरेज डिस्टेंस है, तो जितने दूर से यहां पे इसको ऐसा एंगल सबटेंडेड जो बनेगा, ये अगर एंगल थीटा इज इक्वल टू 1 आर्कसेक बना, ठीक है, मतलब ही 1 डिग्री के कितने टुकड़े, 60 टुकड़ों के भी 60 टुकड़े। 1 डिग्री के भी 60 टुकड़ों के भी 60 टुकड़े। ओके, ये जो एंगल होता है इतना जब बनता है, तो ये जो डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस इज 1 आर्कसेक। ये जो बड़ा पारसेक, दिस बिग डिस्टेंस इज 1 पारसेक। दिस डिस्टेंस, बिग डिस्टेंस इज 1 पारसेक। और हम मेथड में क्या बोलते थे? इस एंगल को थीटा बोलते थे, इस एंगल को थीटा बोलते थे, इस डिस्टेंस को कैपिटल डी बोलते थे, इस डिस्टेंस को कैपिटल डी बोलते थे। ओके, और इस डिस्टेंस को स्मॉल बी बोलते थे स्टूडेंट। स्मॉल बी याद आ रहा है? स्मॉल बी को क्या बोलते थे? स्मॉल बी वॉज कॉल्ड एज बेस। स्मॉल बी वॉज कॉल्ड एज बेस। सो बेसिस, बेस या बेसिस, यस, बेसिस वॉज द नेम एक्चुअली।
स्मॉल b वाज बेसिस। तो थीटा का आंसर क्या हुआ करता था? थीटा हुआ करता था स्टूडेंट्स, आर्क लेंथ इज b डिवाइडेड बाय रेडियस इज d, है ना? रेडियस d है। जैसे कि आप ऐसा बड़ा सा सर्कल इमेजिन करेंगे तो आर्क लेंथ छोटी सी b है, बेसिस इज द आर्क लेंथ। तो आपका थीटा का फॉर्मूला बनता है b बाय d। इससे क्या करते थे हम थीटा मेजर कर लेते थे और बेसिस हम अपना चूज कर लेते थे और डी हम उस पर से कैलकुलेट करते थे। इस फॉर्मूला पर से हम डी कैलकुलेट करते थे। थीटा हम मेजर कर लेते थे। थीटा और ये चीजें हम मेजर कर लेंगे। जब ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बेसिस हम अर्थ पर के दो डिस्टेंसेस लेते थे, तो बेसिस मेजर कर लेते थे, फिर थीटा हम मेजर कर लेते थे और उस पर से हम डी को कैलकुलेट करते थे, डी को कैलकुलेट करते थे। ठीक है, तो डी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डी का फॉर्मूला बन जाएगा बी बाय थीटा। बी का फॉर्मूला बन जाएगा डी थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां वहां करके फॉर्मूला भी चेंज कर सकते हो आप, फॉर्मूला को अलग रूप में ला सकते हो। ये सब हो गया। इसके बाद एक बार ये बड़ा डिस्टेंस हमें पता चल गया स्टूडेंट्स, एक बार ये हमको बड़ा सा डिस्टेंस पता चल गया, उसके बाद हम डायमीटर कैसे निकालते थे? डायमीटर ऑफ द प्लैनेट कैसे निकालते थे? वेल, डायमीटर ऑफ द प्लैनेट अगर मुझे निकालनी है तो उस प्लैनेट की डायमीटर को हम स्मॉल डी बोलते थे। और अर्थ के ऊपर से एक पॉइंट पर से फिर से एक बार पैरेलल मेथड करते थे। इस बार जो एंगल मेजर करेंगे वो कोई नया एंगल अल्फा होगा फॉर द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट। फॉर द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट, डिस्टेंस तो d है, डिस्टेंस तो d ही है, तो इस बार आपको अल्फा मिलता था स्मॉल d अपॉन कैपिटल डी। देयरफॉर d आपको मिल जाएगा कैपिटल D इंटू अल्फा। इस पर से आप स्मॉल d मतलब डायमीटर ऑफ द प्लैनेट मेजर करते थे। इस पर से हम डायमीटर ऑफ द प्लैनेट मेजर करते थे। दिस वाज पैरेलैक्स मेथड स्टूडेंट्स। सर रियल में कैसे होता है मेजर, कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं? हाँ, इक्विपमेंट्स की बात जो है, अल्फा एंगल ही मेजर करना है ना बेटा, सिर्फ एंगल ही मेजर करना है। तो एंगल मेजर करने के अलग अलग टेक्निक्स है, दैट इज इन एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का पार्ट। दैट्स अ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। जो अपने मैंने आपको सिलेबस सेंड किया था उसमें बहुत आगे आता है वो चैप्टर का नंबर। दिशा के डीपीपी में 31 नंबर की डीपीपी शायद उसकी है। तो प्रैक्टिकल फिजिक्स आगे आएगा। हाँ, बट तूने ये जो सवाल पूछा इस पर से कुछ चीजें हमें याद आ गई जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारी स्केल होती थी मीटर स्केल, तो उसके लीस्ट काउंट भी हमने याद कर लिए थे स्टूडेंट्स। लीस्ट काउंट, वैसे लीस्ट काउंट की बात एरर के चैप्टर में आती थी, बट फिर भी थोड़ा सा मेजरमेंट यहाँ पे भी हमने बता दिया था। मीटर स्केल जो होती है वो मिनिमम कितना मेजर करती है स्टूडेंट्स? 1 mm मेजर करती है, मिनिमम 1 mm मेजर करती है, मतलब उसका लीस्ट काउंट 10⁻³ मीटर होता है। वेरएज वर्नियर कैलिपर का उससे भी छोटा होता है, ज्यादा एक्यूरेट होता है। वर्नियर कैलिपर का उससे भी ज्यादा एक्यूरेट होता है। कितना होता है? 10⁻⁻⁴ मीटर होता है। और 10⁻⁻5 मीटर किसका होता है? स्पेरोमीटर। स्पेरोमीटर का उससे भी ज्यादा एक्यूरेट होता है, 10⁻⁻5 मीटर। यस, ये चीज भी काम की है, लेंथ से संबंधित ही बातें चल रही है, इसलिए ये चीजें काम में आ जाएगी। स्क्रू गेज का क्या होता था स्टूडेंट? स्क्रू गेज का 10⁻⁻4 होता था कि -5 होता था? स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट, स्क्रू गेज नाम का भी एक इंस्ट्रूमेंट था, स्क्रू गेज नाम का भी एक इंस्ट्रूमेंट था, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या था? स्क्रू गेज का भी 10⁻⁻5।
स्फेरोमीटर का भी एंड स्क्रू गेज का भी। स्क्रू गेज को भी एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहा जाता है। स्क्रू गेज का ही नाम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज करके ही है, भी है। ओके, क्योंकि वो मिलीमीटर के बहुत टुकड़े कर रहा है, मतलब माइक्रोमीटर के पास उसकी एक्यूरेसी जा रही है। 10⁻⁻5 ये बहुत 10⁻⁻6 के करीब आ गया, तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज उसे बोलते हैं। एंड स्फेरोमीटर, ये दोनों सबसे ज्यादा एक्यूरेट है अपन जो रियल लाइफ में प्रैक्टिकली लैब में करेंगे अबाउट लेंथ मेजरमेंट। चलो ठीक है। देन मेजरमेंट ऑफ मास। मेजरमेंट ऑफ मास जब करते थे उसमें शॉर्ट था, इसमें ज्यादा कुछ थ्योरी नहीं थी। मेजरमेंट ऑफ मास में आपको एक ही छोटा यूनिट याद रखना था, एक ही छोटा यूनिट याद रखना था, कॉल्ड एज 1 U, या तो जिसको 1 AMU भी बोलते हैं। AMU फॉर एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। इसकी डेफिनेशन और इसकी वैल्यू हमें याद रखनी थी। इसकी डेफिनेशन क्या थी? इसकी डेफिनेशन थी, कार्बन पर से डिफाइन करी थी, याद आ रहा है स्टूडेंट्स? वी हैड सीन 1/12, 1/12 ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। टू बी वेरी प्रिसाइज, अनएक्साइटेड वर्ड यूज होता है, अनएक्साइटेड कार्बन 12 एटम। ओके, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है, तो मास नंबर 12 वाले को 12 से डिवाइड करके जो है उसको 1 AMU डिफाइन किया था। और इसकी वैल्यू क्या आती थी? अप्रॉक्स में बताओ, 2 डेसिमल तक याद करेंगे, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये होता है 1 AMU। इसी से संबंधित मैक्सिमम अगर एक और चीज याद रखनी है तो इससे छोटे चीज होती है, वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप अप्रॉक्स याद करेंगे 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये एक बहुत छोटा नंबर होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बस इतने मास के बारे में काफी है, इतना मास के बारे में काफी है। चलो, टाइम के मेजरमेंट में तो वही बातें हैं। टाइम के मेजरमेंट में क्या ही बताना है हमको, टाइम में तो सब पता ही है हमें। फ्रीक्वेंसी हमने उसकी बात ऑलरेडी सेकंड के डेफिनेशन के टाइम पे भी करी, सीजियम, फ्रीक्वेंसी, क्लॉक वगैरह वगैरह, है ना, वो सब हमने बात कर चुके हैं टाइम के बारे में। और बड़े छोटे कोई ज्यादा यूनिट हमें याद नहीं करना है। हाँ, बुक में एक दिया है, 1 डे जो है उसको 24 आवर जो होता है उसको मिनट और सेकेंड में करेंगे तो 86,400 सेकेंड। कभी कभी आपको ये काम में आ सकता है, दिन के सेकेंड करेंगे, फिजिक्स में आगे कहीं कहीं काम में आएगा, इसलिए स्टेट बोर्ड बुक ने आपको ये वैल्यू याद करने के लिए लिख के दिया है। 86,400 सेकेंड होते हैं एक दिन के अंदर, ये वैल्यू जस्ट याद कर सकते हो आप एक्स्ट्रा। 86,400 सेकेंड्स। इसी चीज को 24 वाले ही नंबर को 60 और 60 से 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट और सेकेंड में फिर फाइनली आंसर आ जाएगा। यस, चलो, और क्या चीज थी यूनिट्स में स्टूडेंट्स? और क्या चीज थी यूनिट्स में? एक यूनिट कन्वर्शन नाम की चीज थी। यूनिट कन्वर्शन नाम की चीज थी, इसमें मैंने पहले बड़े बड़े होमवर्क आपको इसी चीज से संबंधित शुरू के दिनों में दिए थे। अप्रैल एंड नहीं, मई मंथ के बिगिनिंग में, लास्ट में मई मंथ के बिगिनिंग में हम ऐसे यूनिट कन्वर्शन के बड़े बड़े होमवर्क किया करते थे। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड की जहां बात है तो 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड ही होता है MKS CGS में, कोई फर्क नहीं है। लेकिन मीटर का सेंटीमीटर में करेंगे तो 10 स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर, 10⁻²। और केजी का ग्राम में करते हैं तो 10⁻³ है ना। केजी, के फॉर किलो होता है, किलो मतलब 10⁻³। ये चीजें हैं। ओके, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो ये मास के लिए है, ये लेंथ के लिए, और ये टाइम के लिए, मास लेंथ टाइम। इसका MKS सिस्टम वर्सेस CGS सिस्टम, ये जो तीनों है ये MKS के और SI के सेम है। ओके,
एसआई में ये जो पहले तीन है, ये एमकेएस में जो है यही एसआई यूनिट भी हमने लिए हुए हैं, ठीक है, पहले तीन की बात है। बाकी एसआई में तो और भी एक्स्ट्रा है, 7 लोग थे एसआई में टोटल ना फंडामेंटल, तो बाकी और एक्स्ट्रा थे, लेकिन ये जो तीन है ये एमकेएस के साथ कॉमन थे। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट्स, फोर्स के लिए 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, ये हमने याद किया हुआ था, इट वॉज 10 to the power 5 डाइन, 10 to the power 5, एंड 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग स्टूडेंट्स, 10 to the power 7 अर्ग, 10 to the power 7 अर्ग। इवन अगर आपको वॉट कोई पूछता है, आगे एक सवाल एचसी वर्मा में से हमने ऐसे सवाल किया था, वॉट खुद होता है जूल पर सेकेंड, वॉट खुद होता है जूल पर सेकेंड, तो उसका सीजीएस यूनिट क्या आ जाएगा, अर्ग पर सेकेंड, उसका कोई अलग नाम नहीं है, अर्ग पर सेकेंड बोलेंगे तो वो भी 10 to the power 7 ही हो जाएगा, ठीक है, वो भी 10 to the power 7 हो जाएगा, ठीक है, वो भी 10 to the power 7 हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अगर आपको कुछ पूछा, अगर उल्टा पूछ लिया आपको, उल्टा पूछ लिया आपको, तो फिर कंफ्यूज मत करना। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया 1 अर्ग इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल, 1 अर्ग इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल, स्टूडेंट्स ऐसा पूछ लिया, तो गलती से 10 to the power 7 मत लिख देना, 10 to the power 7 मत लिख देना। व्हाट विल बी द आंसर, करेक्ट आंसर विल बी 10 to the power -7, 10 to the power -7, परफेक्ट। हाँ, क्योंकि शिफ्ट हो जाएगा ना, दूसरे साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो पावर निगेटिव हो जाएगी, पावर निगेटिव हो जाएगी। चलो, और बताइए स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने डायमेंशन को टच नहीं किया है, बेसिक यूनिट्स में सब चीजें मैंने कवर करने की अभी तक कोशिश की, यूनिट से संबंधित ऑलमोस्ट सभी चीजें हमने क्लास में, और कुछ हमने एक्स्ट्रा कुछ किया था ऐसा आपको याद आ रहा है, आप शेयर कर सकते हो, वी विल रिवाइज दैट ऑल्सो, सब हम बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हम क्वेश्चन के थ्रू सीखे थे, वो बात अलग है, बहुत सारी चीजों के यूनिट हम क्वेश्चन के थ्रू सीखे थे, मेनी थिंग्स के यूनिट्स हम क्वेश्चन के, तो नई नई क्वांटिटीज आया करती थी तो उसके यूनिट, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस तो वोल्ट आता उसका यूनिट, ये हमने बात करी होगी, है ना। ऐसे बहुत अलग अलग नई नई चीजें आया करती है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट नाम की चीज आई थी, मैकेनिकल इक्विवेलेंट नाम की चीज आई थी, तो उसका यूनिट हमने देख लिया था जूल पर कैलोरी, ठीक है। सर वेबर क्या होता है, अच्छा वेबर जो होता है बच्चों, ये मैग्नेटिक फ्लक्स नाम की क्वांटिटी होती है, उसका यूनिट होता है। चलो, तो क्वांटिटी उसका यूनिट, ठीक है, क्वांटिटी और उसका यूनिट, कुछ स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट, ये हमने एनसीईआरटी में से मैंने आपको अपेंडिक्स में दिया था ये चीजें करने को, तो कुछ चीजों की, जैसे क्वांटिटी चार्ज है, तो यूनिट क्या है, कैपिटल सी फॉर कूलम, कैपिटल सी फॉर कूलम है, ठीक है। अगर 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 क्वांटिटी है ई पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ हो, ईएमएफ और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या तो पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, वोल्ट होता है स्टूडेंट्स, वोल्ट होता है, ठीक है। अगर क्वांटिटी है आपकी रेजिस्टेंस, अगर आपकी क्वांटिटी है रेजिस्टेंस, तो उसके लिए ओहम होता है, अगर आपकी क्वांटिटी है रेजिस्टेंस तो उसके लिए ओहम होता है। अगर आपकी क्वांटिटी है इंडक्टेंस, अगर आपकी क्वांटिटी है इंडक्टेंस, ओके, जिसको हम रेजिस्टेंस को आर, इंडक्टेंस को एल, कैपेसिटेंस को सी करके डिनोट करते थे, लेकिन उनके यूनिट्स क्या होते हैं, इंडक्टेंस का यूनिट एच से होता है स्टूडेंट्स, हेनरी नाम के, अलग अलग साइंटिस्ट के नाम आपको मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता हूँ। कैपेसिटेंस का कैपिटल एफ करके होता है फैराड, फैराड, फैराडे नहीं, फैराड, फेराड नाम से चीज होती है, ओके, फैराड नाम से चीज होती है। तो अब मैं आ रहा हूं मैग्नेटिज्म वाली चीज पे, तो बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स नाम की एक चीज होती है, उसका यूनिट होता है वेबर, वेबर भी साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए कैपिटल डब्ल्यू भी लिखेंगे, वेबर, ओके, वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। और मैग्नेटिक फील्ड नाम की जो चीज होती है, मैग्नेटिक फील्ड नाम की जो चीज होती है, ओके, इनके भी सिंबल आगे आते हैं स्टूडेंट्स आपको,
मैग्नेटिक फील्ड नाम की जो चीज होती है, मैग्नेटिक फील्ड नाम की जो चीज होती है, उसका यूनिट होता है टेस्ला। उसका यूनिट होता है टेस्ला। क्योंकि फील्ड इज सेम एज मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये भी हमने किसी क्वेश्चन में किया था। मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसीलिए स्टूडेंट्स 1 टेस्ला इज सेम एज 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। 1 टेस्ला इज सेम एज 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सब चीजें मैग्नेटिज्म नाम के चैप्टर में डिटेल में आएगी। हाँ, कंडक्टेंस की भी बात की थी स्टूडेंट, जरूर। कंडक्टेंस नाम बेटा मोह होता है, जिसी को जिसी को हेलो स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी अगेन? कैन यू हियर मी नाउ अगेन स्टूडेंट्स? यस, यस स्टूडेंट्स। तो मोह कोई जो होता है, उसको कैपिटल एस करके भी बोलते हैं, फ्रॉम अनदर साइंटिस्ट नेम, जिस पर से कंपनी का भी नाम है, सीमेंस। SIEMEN। तो सीमेन, SIEMEN। सो सीमेंस कंपनी का भी नाम है। 1 mho is 1 Siemens। ओके, दैट इज नेचुरली 1/ओहम। ओके, इट इज ओहम का उल्टा होता है, मतलब 1 ओहम रेस टू -1 भी मैं उसको लिख सकता हूं। ये होता है कंडक्टेंस स्टूडेंट्स। ओके, ये चीज होती है कंडक्टेंस। 1 ओहम इनवर्स मतलब 1 ओहम रेस टू -1, ये भी मो होता है। ठीक है, तो किसी ने वेबर पूछा था, इसलिए मैंने ये पूरा पेज बता दिया। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक से संबंधित जो जो यूनिट है, ये बहुत सारे यूनिट्स मैंने बता दिए। इसके अलावा भी कुछ आएंगे स्टूडेंट्स, गॉस नाम का छोटा यूनिट आएगा, आएंगे, तो ये आगे आने वाला है। अभी के लिए इतना मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। एनी क्वेश्चंस अप टू दिस पॉइंट स्टूडेंट्स? एनी क्वेश्चंस अप टू दिस पॉइंट? चलो, किसी ने ग्रेडियंट वर्ड याद दिलाया। तो रेट और ग्रेडियंट, ये दो चीजें हुआ करती थी स्टूडेंट्स। रेट जब हुआ करता था, रेट किसी भी चीज का जब रेट हुआ करता था, तो हम किस चीज से डिवाइड करते थे? डिवाइडेड बाय टाइम होता था। और जब ग्रेडियंट पूछते थे, तो डिवाइडेड बाय क्या होता था? डिस्टेंस हुआ करता था। रेट मतलब डिवाइडेड बाय टाइम होता है, और ग्रेडियंट मतलब डिवाइडेड बाय डिस्टेंस होता है। बहुत सारे फॉर्मूले में आता है ये। पोटेंशियल ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट वगैरह वगैरह चीज होती है। तो जिस भी चीज का ग्रेडियंट है, उस चीज को डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलो फैंटास्टिक, गुड। आई थिंक हमने सभी यूनिट्स के बारे में अच्छे से एक बात कर ली। वो मुझे मैकेनिकल इक्विवेलेंट बहुत अच्छा लगता है, तो उसकी भी याद कर लेते हैं। अभी मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट करके एक नाम था, उसका क्या आंसर था? अप्रोक्सीमेटली 4.2 या 4.18 जूल पर कैलोरी। जूल पर कैलोरी स्टूडेंट्स। ओके, जूल पर कैलोरी। इसका नाम कहाँ आया था स्टूडेंट्स, याद है क्या? डायमेंशन नहीं हुआ करता था इसका, हाँ, यूनिट था लेकिन डायमेंशन लेस था। कि ये डायमेंशन लेस, क्योंकि जूल और कैलोरी, जूल इज फॉर वर्क का यूनिट, दैट इज एनर्जी का यूनिट, और कैलोरी इज हीट का यूनिट। तो दोनों वैसे तो सेम ही चीजें हैं। तो जूल पर कैलोरी इफेक्टिवली उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ओके, तो इट विल बी डायमेंशन लेस। तो वैसे ये कल के डिस्कशन में हम रिवीजन करने वाले डिटेल डायमेंशंस की। तो डायमेंशन लेस, रेडियन स्टेरेडियन भी डायमेंशन लेस आते हैं। ये सब चीजें वी विल टॉक अबाउट इट अगेन। किसी को कोई यूनिट से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना है स्टूडेंट्स? एनी क्वेश्चन, बुकलेट का या कहीं और का, एनी क्वेश्चन या एनी डाउट यू आर रिमेम्बरिंग कि सर ये चीज यूनिट का मैंने सॉल्व किया, ये मुझे नहीं आया, ऐसा कुछ है तो बताइए। कुछ और रिवाइज करना है तो बताइए। स्ट्रेन वगैरह ये चीजें स्टूडेंट्स डायमेंशन के टाइम पे मैंने बताई थी। स्ट्रेन भी यूनिटलेस होता है करके, स्ट्रेन भी यूनिटलेस होता है। कैसे? सेम चीज को डिवाइड कर देंगे तो यूनिटलेस चीज आपको मिलेगी। सेम सेम चीज को डिवाइड करेंगे तो यूनिटलेस, तो स्ट्रेन यूनिटलेस हुआ करता था, ये चीज है।
विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, ये सब मैं डायमेंशन में बताने वाला स्टूडेंट्स, ये सब चीजें तो मैं डायमेंशन में बताने वाला हूँ, ये सब चीजें डायमेंशन में बताएंगे, ये सब डायमेंशन में आएगा, विस्कोसिटी, परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, ये सब चीजों के हमें डायमेंशन जरूरी थे, तो वहां पे आ जाएगा, ओके, वहां पे आ जाएगा। यस, दैट वी आर गोइंग टुमारो। एकदम यूनिट से संबंधित स्पेशल कोई चीज किसी को कुछ चाहिए और तो सोचिए, अपने पास कुछ मिनट है, वी विल टॉक अबाउट इट। हाँ, किसी ने केजी मीटर क्यूब ग्राम पर डेंसिटी की याद दिला रहे हैं। मैंने आपको एक सवाल क्लास में पूछा था, अरे एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज रह गई स्टूडेंट्स, आप को भी याद नहीं आया। हाँ, वेरी गुड सुष्मिता, थैंक यू, वही चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, N1U1 = N2U2, एक पूरा क्लास तो हमने अलग से इसी पे लिया था, क्वेश्चंस भी किए थे। N1U1 = N2U2, तो अगर मान लो से यूनिट बड़ा होगा, एक आधा कोई यूनिट अगर बड़ा होगा, तो उसके बाजू में जो नंबर आता है वो छोटा होता है ना। फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर होता है, तो हमने बोला था कि मीटर बड़ा होता है सेंटीमीटर से, लेकिन बाजू में जो नंबर है 1 वो छोटा होगा, राइट। सो N1U1 = N2U2, U1U2 यूनिट्स है, N1 N2 नंबर्स, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो उसके पास में होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। यस, इसके थोड़े टफ क्वेश्चन में कभी कभी क्या करते थे, आपको याद है, हमने बहुत दिशा डीपीपी का डिस्कशन में ये सब चीजें की है, नया सिस्टम ऑफ यूनिट डिफाइन कर देते हैं। कई नए सिस्टम में ना 10 सेंटीमीटर को कुछ नया यूनिट ले लिया, 0.01 सेकेंड को कुछ नया यूनिट ले लिया, है ना, तो ऐसे टाइप के हम सवाल किया करते थे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशंस का होता है। यस, टुमारो वी विल टॉक अबाउट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आल्सो। यस, और कोई छोटी मोटी चीज स्टूडेंट्स यूनिट से संबंधित, कोई डाउट नहीं, ऑल क्लियर, परफेक्टली। अच्छा, राइट हैंड रूल दिखाना है। क्या आपको वेबकैम बराबर से दिख रहा है स्टूडेंट्स? क्या आप सब लोगों को वेबकैम दिख रहा है? ठीक है भाई, तो किसी को अगर वेक्टर सॉल्व करते समय राइट हैंड रूल से तकलीफ हो रही है, तो मुझे आधा मिनट दीजिए, मैं यहां से पेन जमा करता हूं 2-3 और आपको राइट हैंड रूल समझाता हूं। ये स्टूडेंट्स देखिए, अभी जो पेन है, डू यू सी इट इज ब्लू इन कलर? यू नीड टू बिलीव मी, व्हाइट के साथ ब्लू कलर है, ठीक है। अनदर वन इज रेड इन कलर, ठीक है, अनदर वन इज रेड इन कलर, ठीक है। अब इसको मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जैसे अगर लिखूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जैसे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जैसे, तो से आई एम शोइंग यू इट लाइक दिस, फॉर यू दिस इज एक्स एक्सिस, फॉर यू दिस इज एक्स एक्सिस, एंड फॉर यू दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। So blue color is x-axis for you. Blue color is x-axis for you. Blue color is x-axis for you, and red color is y-axis for you. अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे z एक्सिस निकालना है राइट हैंड रूल से, राइट हैंड कर्लिंग रूल से, तो मुझे मेरी सभी फिंगर्स पहले x एक्सिस के अलोंग करनी है, क्योंकि x का y के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो z एक्सिस आपको मिलता है। तो सभी फिंगर्स में ब्लू की तरफ करूंगा और बाद में वो रेड की तरफ टर्न करूंगा, ऑल फिंगर्स ब्लू की तरफ, ऑल फिंगर्स ब्लू की तरफ, ऑल फिंगर्स ब्लू की तरफ, और उसको टर्न करेंगे रेड की तरफ, ब्लू से रेड की तरफ, ब्लू से फिंगर्स
ब्लू से फिंगर्स लेके रेड की तरफ टर्न कर रहा हूं, तो थंब आपकी तरफ आ रहा है, थंब आपकी तरफ आ रहा है, थंब आपकी तरफ आ रहा है। ये हुआ जेड एक्सिस, ये हुआ राइट हैंड रूल, ये हुआ जेड एक्सिस। ठीक है, तो यहां पे मैं ब्लैक कलर का पेन एक पुट कर दूं, ये वाला ब्लैक कलर का पेन है मेरे पास, ब्लैक वाला, दिस इज द ब्लैक पेन स्टूडेंट्स। ये हुआ आपका जेड एक्सिस, ये हुआ आपका जेड एक्सिस। थोड़ी डायग्राम में तिरछी करके आपको बता रहा हूं समझने के लिए। देखिए, तीनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तीनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे। इज इट क्लियर? तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे। चलो, ओके स्टूडेंट्स, कूल। बाकी डायमेंशंस कल रिवाइज करते हैं स्टूडेंट्स। प्लीज थोड़ा सा रिवाइज इन द सेंस, आप देखिए एक बार पूरा बुकलेट खोलिए, डीपीपी देखिए, कोई आपका क्वेश्चन बचा होगा, कहीं और से कुछ क्वेश्चन मिलता है, परफेक्टली क्लियर कीजिए। अपने पास और 2 दिन है बिफोर द टेस्ट, सो वी विल क्लैरिफाई। कल पूरा डायमेंशन रिवाइज कर लेंगे और परसों हो सकता है वेक्टर्स की भी वापस रिविजन कर लेंगे। चलो स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, बाय। वेलकम स्टूडेंट्स, बाय।